আগ্রা থেকে 40 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ফতেপুর সিকরি আগ্রা জেলার একটি শহর এবং একটি বিখ্যাত পর্যটন আকর্ষণ। প্রাথমিকভাবে লাল বেলেপাথরে তৈরি একটি শহর ফতেপুর সিকরি 15 শতকে মুঘল সম্রাট আকবরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি মূলত রাজার দ্বারা নির্মিত একটি সুরক্ষিত শহর এবং 15 বছর ধরে এটি তার সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। এখন ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান। এটি যোধাবাইয়ের প্রাসাদ, জামা মসজিদ, বুলন্দ দরওয়াজা এবং সেলিম চিশতির সমাধি ছাড়াও অন্যান্য অনেক বিখ্যাত স্মৃতিস্তম্ভের বাড়ি। স্থাপত্যের উৎকর্ষ সহ ধর্মীয় বিশ্বাসের এক অনন্য মিশ্রণ ফতেপুর সিকরির সারাংশ। আকবর শেখ সেলিম চিশতির সম্মানে এটি নির্মাণ করেছিলেন, যার একজন মুঘল উত্তরসূরির জন্মের ভবিষ্যৎবাণী সত্যি হয়েছিল যখন আকবর তখনকার সিকরি শহর পরিদর্শন করেছিলেন। ভবিষ্যৎবাণীর সম্মানে আকবর শহর এবং জামে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, একটি দুর্দান্ত মসজিদ যা আজও ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি তার প্রিয় স্ত্রীদের জন্য 3টি প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন, একজন হিন্দু, একজন মুসলিম, একজন খ্রিস্টান। একটি ইন্দো ইসলামিক মাস্টারপিস ফতেপুর সিকরি সূর্যাস্তের সময় সবচেয়ে দর্শনীয় দেখায়। ফতেপুরে প্রবেশ করতে কোনো টিকিট লাগে না। এই ফতেপুরে দেখবেন সেলিম বাবার মাজার, বুলন্দ দরওয়াজা, হাওয়া মহল, আনারকলির জীবন্ত সমাধি, এছাড়াও অনেক কিছু। আর এই ফতেপুরের পাশেই রয়েছে সিকরি, যেখানে প্রবেশ করতে হলে টিকিট মূল্য লাগে 50 টাকা। যদি শুক্রবারে আসেন তাহলে 40 টাকা। এই সিকরিতে দেখতে পাবেন যোধাবাই মহল, রান্নাঘর, দেওয়ানি আম, দেওয়ানি খাস, পঞ্চমহল, বীরবল মহল, আকবর মহল ইত্যাদি। আমরা এই ভিডিওটিকে 2টি পার্টে বানিয়েছিলাম, ফতেপুর ও সিকরি, আপনাদের বুঝবার সুবিধার্থে। আমরা ভিতরে গাইডের মাধ্যমে সবকটি প্লেস খুব সুন্দরভাবে ঘুরেছি ও ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। প্রথম পার্টে রয়েছে ফতেপুর সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যর ভিডিও, যার নিচের ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, দেখে নেবেন। এবং আজ এই পার্টটি বানালাম সিকরি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য। তো চলুন দেরি না করে স্টার্ট করা যাক আজকের ভিডিও। আর হ্যাঁ, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি এখনই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ফতেপুরের ঠিক মূল গেটের সামনে রয়েছে সিকরি। আমরা এগিয়ে চললাম টিকিট কাউন্টারের দিকে। এখানে টিকিটের রেট ও গাইডের রেট দেওয়া রয়েছে, তবে একটু দাম দর করলে গাইডের রেট কিন্তু কমে যায়। আমরা টিকিট কেটে এগিয়ে চললাম প্রাসাদের উদ্দেশ্যে। अभी आप जो देख कर आए थे वो फतेहपुर है, जहाँ सलीम चिश्ती साहब की दरगाह है। सीकरी अकबर का किला है। मुगलों में सबसे पहले जो बादशाही थे यहाँ बाबर आए थे। बाबर के बाद बादशाह हुमायूं थे। तीसरे मुगल बादशाह अकबर थे। अकबर की कोई औलाद नहीं थी, अकबर औलाद के खातिर फतेहपुर सीकरी है। और अकबर की 3 बीवियाँ थी, एंड दे गॉट डिफरेंट रीजन्स वाइज, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। मगर हिंदू रानी जिनका नाम था महारानी जोधा, शीज आर बिलोंग फ्रॉम जयपुर, सिस्टर ऑफ राजा मान सिंह। और अकबर की जो मुस्लिम रानी थी जिनका नाम था रुकैया बेगम, शीज आर बिलोंग फ्रॉम टर्की, इस्तांबुल। और अकबर की जो ईसाई रानी थी जिनका नाम था मरियम, वो पुर्तगाल के रहने वाली थी। आज उस जगह का नाम गोवा है। इससे पहले जो हुकूमत थी वो पुर्तगालियों की थी। अकबर को बेटा मिला, जिस बेटे का नाम सलीम रखा, बाद में जहांगीर कर दिया गया। अकबर ने उसकी खुशी में ये पूरा किला बना डाला। इसको 12 साल बनाने में लगाए थे। बिल्डिंग स्टार्टेड 1570 एंड 1582 इज कंप्लीटेड एंड 1586 अकबर लेफ्ट दिस प्लेस। क्यों छोड़ दी? पानी की यहाँ प्रॉब्लम हो गई, पानी की कमी हो गई, इसलिए बादशाह जगह को छोड़कर सीधे लाहौर चले गए। देन दे आर कम बैक इन आगरा। आगरा में एक जगह जिसका नाम है सिकंदरा, वहाँ बादशाह अकबर का मज़ार है। और अकबर के जो फादर थे जिनका नाम था हुमायूं, हुमायूं टूम इज इन दिल्ली। एंड अकबर ग्रैंडफादर वाज बेरिड काबुल, अफगानिस्तान। मुगल इज नॉट फ्रॉम इंडिया, मुगल इज कमिंग फ्रॉम मंगोलिया। सारे लोग मंगोलिया से आए थे। और अकबर के लड़के का जो टूम है जिनका नाम था सलीम,
बाद में जहांगीर कर दिया, उनका टूम लाहौर के अंदर। नाउ इज द पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पहले ये मुल्क एक ही था। ये जो महल देखेंगे, ये महारानी जोधा का महल है। शी इज ए फेवरेट वाइफ ऑफ द किंग। अकबर ने सबसे बड़ा महल जोधा के लिए बनाया था, सबसे छोटा महल मुस्लिम रानी के लिए बनाया था, जिनका नाम था रुकैया बेगम। छोटा कमरा है मगर क्वाइट एक्सपेंसिव। ये अकबर की हिंदू फेवरेट रानी थी, खूबसूरत भी थी, हुस्न भी था, और राजा की बेटी भी थी, बीबी भी था। हुस्न की कदर तो जमाने में भी थी, आज भी है और रहेगी। दुनिया में दो चीज कभी जिंदगी में खत्म नहीं होंगी, हुस्न की कदर हमेशा होती आई है। एक जलिस जो होती है ना, इनसाइड की हो जब आउटसाइड, वो भी कभी खत्म नहीं होती। अच्छा, ये गिरजाघर है। और हिंदू रानी के लिए मंदिर भी बनाया है। मंदिर आप अंदर देखेंगे, द 6 पॉइंट स्टार, स्टार ऑफ डेविड, यानी कि यहूदियों का सिंबल है। जो इजराइल कंट्री है, उनका फ्लैग मार्क भी 6 पॉइंट का है। ये महारानी जोधा का महल है। एक बेगम के लिए कितना बड़ा बादशाह ने महल बनाया। महल क्या बनाया, हवेली बनाई। इट इज ए कल्चर ऑफ राजस्थान। वहां के राजा महाराजा लोग हवेलियों को बड़ा पसंद किया करते थे। ये दोनों बिल्डिंग आपको देखने में एक सी नजर आएंगी। गर्मियों के वक्त इधर आराम करती थी, सर्दियों के वक्त उधर आराम करती थी। दैट वाई वी कॉल समर बेडरूम एंड विंटर बेडरूम। उस जमाने में कोई एयर कंडीशन नहीं थे। उस जमाने में चमेली, गुलाब, अंगूर के बगीचे थे। ठंडी हवाएं आती थी गर्मियों के वक्त में। सूरज उधर से निकलता तो सर्दियों में उधर आराम करती थी, क्योंकि धूप का पूरा अक्स उस बिल्डिंग पर पहुंचता है और चारों तरफ से वो रूम कवर है। हिंदू परंपरा के हिसाब से तुलसी पर जल चढ़ाती थी। उसके बाद सामने मंदिर है, वहां पूजा करती थी। वो चलेगा उधर अभी। वो सामने मंदिर है, गणेश राधा कृष्णा की पुजारन थी, और सोने चांदी की चीजें, हीरे जबरात लगे हुए थे। अंग्रेजों का दौर है, व्हेन इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, इन चीजों को वो लोग निकाल कर ले। क्योंकि अंग्रेज तो उस जमाने में भी होशियार थे और ये आज भी होशियार है। ये छोटे छोटे रूम जो दिख रहे हैं, ये उनके दासियों की जगह रहने की है। अच्छा, उस जमाने में जो तरीका था बुलाने का, कोई वेल सिस्टम नहीं था। उस जमाने में तालियों का प्रयोग होता था। एक ताली बजेगी एक हाजिर, और 10 ताली बजेंगी तो 10 हाजिर। दीदी यहाँ जोधा बैठकर पूजा करती थी। गणेश राधा कृष्णा की मूर्तियां थी। अच्छा, अंग्रेज होशियार लोग थे, इन चीजों को निकाल कर ले गए। मंदिर में जब भी जाएंगे तो पीतल की घंटियां होती है। अकबर ने 70 की घंटियां बनाई थी। अच्छा, ये कलश है। अकबर एक ऐसा बादशाह गुजरा, उसने एक मजहब बनाया था, जिस मजहब का नाम था दीन इलाही। इलाही माने गॉड, दीन माने रिलीजन। अकबर ने उस नए धर्म की शुरुआत की। उसने एक ही पिलर के अंदर सारे धर्मों के सिंबल दिए हुए, वो मैं आपको आगे बताऊं। तो किचन बनाए थे शाकाहारी और मांसाहारी, क्योंकि जोधा के लिए प्योर वेजिटेरियन, मुस्लिम रानी और ईसाई रानी के लिए छोटा सा किचन बनाया। बोथ आर नॉन वेज। अच्छा, मगर दोनों मांसाहारी थी। जोधा प्योर वेजिटेरियन थी, इसलिए बड़ा रसोई घर बनाया। अच्छा, ये किचन घर है। हाँ, ये किचन, ये झुमके की कारीगरी है। जोधा को जो भी झुमके पसंद आते थे, उनके मुताबिक बनाए जाते थे। अच्छा, हर एक झुमके की कारीगरी दीदी आपको अलग अलग मिलेगी। तो इट इज ए किचन ऑफ हिंदू वाइफ।
सामने जो बिल्डिंग देखेंगे, इस बिल्डिंग का नाम है पंचमहल। अच्छा वो वाला। पंच मीन्स 5, महल में वो जो बोलता। पंचमहल। हिंदू रानी ऊपर जाके सूरज की पूजा करती थी, मुस्लिम रानी ईद बकरीद का चांद देखा करती थी। इसको हवा महल भी कहते हैं, इसको पंचमहल भी कहते हैं। हिंदुस्तान में 2 हवा महल है, एक जयपुर शहर में भी है, एक फतेहपुर सीकरी में है। 176 कॉलम, 176 कॉलम का बना हुआ है। देयर इज नो एनी वॉल, कोई दीवार की सपोर्ट नहीं है। ये वो जगह है जहाँ बैजू बावरा और तानसेन बड़े मशहूर संगीतकार थे। अच्छा तानसेन बिना वजह। तानसेन और बैजू बावरा एक कंपटीशन हुआ, उन्होंने गाया था दीपक राग, तो पानी में दिए जले थे। फिर गाया था मेघ मल्हार, तो बारिश हो गई थी। अच्छा इसी जगह बैठकर गाया था। एक जोधा अकबर सीरियल देखा, जो जोधा अकबर मूवी देखी, ये इसी जगह का सीन है। और एक फिल्म बनी थी बंगला की, जिस फिल्म का नाम था लाल पत्थर। उस फिल्म के हीरो जो थे उत्तम कुमार, सुप्रिया चौधरी थे। इधर ही का बना है। अच्छा अकबर की रॉयल फैमिली ऊपर बैठा करती थी, संगीत का पूरा आनंद लिया करती थी। अच्छा अकबर की 3 रानियां थी, 100 उनकी दासियां भी थी, विच यू से अनऑफिशियल वाइफ। हाँ, ये थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। ये अकबर का बेडरूम में जब बादशाह आराम किया करते थे। अच्छा असल बादशाह कोई लंबे चौड़े जवान नहीं थे, 5 फीट 2 इंच की हाइट थी। बादशाह पर्शियन गलीचे होते थे, उस पर बादशाह आराम किया करते थे। अच्छा, नीचे गुलाब जल भर दिया जाता था। अच्छा गुलाब जल किस लिए भरते थे? खुशबू भी रहे, ठंडक भी रहे और सिक्योरिटी भी रहे, क्योंकि उस जमाने में जो कत्ल होते थे बहालों और तलवारों से होते थे। आज का दौर तो आप जानते ही, आप सिक्योरिटी में AK-56 और AK-47 का दौर है। उस जमाने में कोई आदमी उन पर हमला ना करे, और पानी के अंदर चलेगा तो उसकी आवाज आएगा। ये नाली दिख रही है, टैंक से कनेक्टेड की गई है, रोज वाटर के चैनल। और ये कारीगरी देखिए आप, कितनी खूबसूरत कारीगरी जो हाथ से तराश कर बनाई है। ये सारा अंगूर का काम किया जगह है, क्योंकि अकबर के ज़माने में पानी की प्रॉब्लम थी, ज़्यादा खारी पानी थी। तो अनूप शहर एक जगह है खुर्जा बुलंदशहर के पास, वहाँ से बादशाह के लिए गंगा जल आता था, और बादशाह यहाँ इसको स्टोर रखते थे, इसको पीते भी थे और इससे नहाते भी थे। अच्छा इसी से। ये बेगम सबसे छोटा कमरा मुस्लिम रानी के लिए बनाया। अच्छा सबसे बड़ा जो महल देखा आपने, हाँ। वो जोधा के लिए बनाया। जोधा इज अ फेवरेट वाइफ ऑफ द किंग। अच्छा हाँ ये अकबर की मुस्लिम रानी का कमरा है, मगर बड़ी देखिए व्हाइट होल जो दिख रहा है ना दादा आपको, उस जमाने में हीरे जवाहरात लगे हुए थे। देयर लॉट ऑफ डायमंड जूट्स। अंग्रेजों का जब दौर है ना, उनकी हुकूमत आई तो इन चीजों को निकाल कर ले गए, मगर कारीगरी देखिए आप, कितनी खूबसूरत कारीगरी करते थे। ये कारीगरी देखें, कितनी खूबसूरत कारीगरी है। उस जमाने में यहाँ बगीचे थे, चमेली, गुलाब, अंगूर के, ठंडी हवाएं आती थी और रुकैया आराम किया करती थी। दे आर स्लीपिंग बेटर देन एयर कंडीशन। एयर कंडीशन इज आर्टिफिशियल थिंग। ये चौपर खेलने की जगह देखो, है ना, दावा होता ना, दावा चेस बोर्ड। चेस बोर्ड के अंदर 16 गोटियां होती है, मगर उस जमाने में 16 दासियां ली जाती। हर पॉइंट पे 4-4 दासियां खड़ी कर दी जाती है। अच्छा और राजा रानी वहाँ बैठा करती थी। अच्छा जब डाइस पिकती तो गर्ल्स आर वॉकिंग लाइक डांसिंग। गोटों की जगह लड़कियां चलती थी। साइड में जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये दीवाने आम है, आम लोगों की जगह। और डबल स्टोरी जो बिल्डिंग है वो दीवाने खास है, खास लोगों की जगह। हाउस ऑफ द कॉमन एंड हाउस ऑफ द लॉ। ये इस बिल्डिंग का नाम दीवाने खास, यानी कि
बादशाह अकबर ऊपर बैठा करते थे सेंटर में, अच्छा और बादशाह के जो 9 रतन थे, जिनको 9 रतन कहा जाता, वो साइड में बैठा करते थे। बादशाह ने इस पिलर के अंदर सारे धर्मों की सिंबल दी हुई। सबसे पहले जैन आर्किटेक्चर, सेकंड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, पर्शियन डिज़ाइन, क्रिश्चियन सिंबल, हिंदू सिंबल, इस्लामिक सिंबल, दिस इज कॉल्ड पर्शियन। यानी कि सब धर्म को मिलाने के बादशाह ने उस धर्म का नाम रखा दीन इलाही। इलाही माने गॉड, दीन माने रीजन। अकबर ये चाहता था हम सब मिलकर एक भगवान बना लें, मगर लोगों ने इस बात को नहीं माना। ये बेटा रास्ता ऊपर के जाने का, अच्छा कहाँ का? ऊपर जाने का रास्ता। अच्छा ये आंख मिचौनी खेलने की जगह, प्ले हाइड एंड सीक। अच्छा बादशाह अकबर तीनों रानियों के साथ ये आंख मिचौनी भी खेला करते थे। अच्छा, उस जमाने में उनके पास दासियां भी थी, उनके साथ मिलकर खेला करते थे। अच्छा, उस जमाने में पेपर करेंसी नहीं होती थी, उस जमाने में सिक्के हुआ करते थे सोने और चांदी के, तो यहाँ जमा कर दिए जाते थे। ये तकरीबन 24 बॉक्स इस बिल्डिंग के अंदर है। गरीबों को जो दान किया जाता था वो यहीं से किया जाता। अच्छा सब कुछ लुट गया, बचे ही क्या है, और हम बच गए तो फिर जले ही क्या। ये वो जगह है जहां पंडित परशुत्तम दास, मशहूर ज्योतिषी थे, बादशाह अकबर को हाथ देख के पूरी कहानी बताते थे। इज ए फेवरेट एस्ट्रोलॉजर। ये जैन आर्किटेक्चर है, बेसिकली गोइंग टू राजस्थान, रनकपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, माउंट आबू, वहां आपको जैन मंदिर बहुत मिलेगा। पीछे ये लेडीज मार्केट इज कॉल्ड मीना बाजार। जितने भी, हाँ, मीना बाजार, जितने भी सौदागर लोग थे ना, समरकंद, ताशकंद, बुखारा, अफगानिस्तान से आते थे अकबर की रॉयल फैमिली को गलीचे जबरात लेकर बेचने के लिए। अच्छा, उस जमाने में जो शॉपकीपर तो लेडीज ही होती थी, जेंट्स नहीं होते थे। जिनका नाम था राजा टोडरमल, ही वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर, जिन्होंने जजिया टैक्स लगाया था। ये वही मंत्री थे। अकबर के असल जो मंत्री थे बीरबल साहब, जो सरकार चलाते थे। बीरबल का नाम तो आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, छिंदवाड़ा के। मगर आज के दौर में आप देख रहे हैं अमित शाह चलाते हैं, उस जमाने में बीरबल चलाते थे। ये अकबर की ईसाई रानी का महल है, जिनका नाम था मरियम, जो पुर्तगाल के रहने वाली थी। वो सामने जो दिख रहा है वो बीरबल पैलेस है। अकबर के बड़े मशहूर मंत्री से बीरबल, वो वहाँ रहते थे। ये जोधा का महल था, जो मैंने आपको पहले बताया। गर्मियों में इधर आराम करती थी क्योंकि ठंडी हवाएं आती थी। उस जमाने में जब बगीचे थे, जंगल भी था, बगीचे भी थे, और मोती झील भी था, तो ठंडी हवाएं यहाँ लगती थी। মহেশ দাস, যিনি বীরবল নামে পরিচিত ছিলেন। এটি হলো বীরবলের প্রাসাদ। আকবরের প্রিয় বীরবল তার দরবারে একজন হিন্দু মন্ত্রী ছিলেন। এই প্রাসাদটি যোধাবাইয়ের প্রাসাদের উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত। এতে 4টি কক্ষ রয়েছে, যা খোলা দরজা দিয়ে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। বীরবলকে দরবারের 9টি রত্ন হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। 1556 থেকে 1562 সালে আকবর কর্তৃক তিনি নিযুক্ত হন এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দরবারি ছিলেন তিনি। তার বুদ্ধিমত্তার জন্য তিনি পরিচিতি পেয়েছিলেন। এই জায়গাটি মূলত বাদশাদের ঘোড়া বাঁধার জন্য ব্যবহার করা হতো। এই জায়গাটি ঠিক বীরবল হাউসের উল্টো দিকে অবস্থিত। এই স্থানটি মূলত স্নান করার জন্য ব্যবহার করা হতো। এখানে আগে জলের ট্যাঙ্কি ছিল। এই ছিল মূলত স্বীকৃতিতে ঘোরার জায়গা।
ফতেপুরের যে স্পটগুলি আগে আমরা দেখিয়েছি, যদি না দেখে থাকেন ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিলাম, অবশ্যই দেখে নেবেন। আপনি যদি চান ফতেপুর স্বীকৃতিতে আপনি থাকতেও পারেন, তার জন্য হোটেলেরও ডিটেলস একটি ভিডিও রয়েছে এবং প্রথম পর্বে আমরা তার ডিটেলস আলোচনা করেছিলাম, অবশ্যই প্রথম ভিডিওটি দেখে নেবেন। আগ্রা থেকে ফতেপুর সিক্রির দূরত্ব প্রায় 40 কিলোমিটার। এই জায়গাটি অবশ্যই ঘুরে আসবেন, আশা করি খুব ভালো লাগবে এবং ইতিহাস সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানতে পারবেন। ভিডিওটি কেমন লাগলো জানাবেন, সাথে অবশ্যই আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। নমস্কার, ধন্যবাদ।